हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एट हिट बुल्सआई। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एंड दैट इज डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। नाउ इफ अ कार इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर and the distance between it is d, so how can we calculate the speed, distance or the time? So using these basic formulas which we have been studying since our earlier classes, that is speed is equal to distance upon time, also time is equal to distance upon speed, and इसी formula को हम other way around ले जाकर distance calculate कर सकते हैं as speed into time. Now let's understand this theory with a question. A train 100 meter long passes a particular point on its way in 20 seconds. What is the speed of the train? As per the equations we just learned, we can simply identify that this is a very basic question and can be solved with a simple formula like speed is equal to distance upon time. Distance हमें दिया हुआ है 100 meters, time हमें दिया हुआ है 20 seconds. हम straight away इसका आंसर लिख सकते हैं 5 meter per second. But एक ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम द स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर आंसर बाय 18 अपॉन 5 एंड दैट विल गिव अस 18 किलोमीटर्स पर आवर. अगर आपको ऑप्शंस में मीटर पर सेकंड में पूछा है देन डेफिनेटली आपका 5 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर. नाउ अनदर थिंग टू नोट अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट जब किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से हमारी ट्रेन या कोई कार या कोई भी व्हीकल पास होता है, in that situation we use this kind of method. For example, if there is any kind of pole, a tree, a person who is standing, so all the objects that are stationary और जिनका length almost zero के बराबर है, in that case we use this method. For the situations like जब कोई ट्रेन, जब कोई कार या कोई भी व्हीकल अगर अप्रोच कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ब्रिज को या फिर किसी टनल को, इन दैट केस लेट्स सी हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हैरी पॉटर फैंस आर गोना लव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस इज 700 meters long and is running at a speed of 20 kilometers per hour. It crosses the Shone Bridge in 3 minutes. What is the length of the bridge? As I just told you, जब भी कोई इस टाइप पर क्वेश्चन आता है जहां पे हम बात करते हैं किसी टनल की, किसी ब्रिज की, किसी प्लेटफॉर्म की, in that case we add up the length of the train as well as the length of the bridge or any object which is there. So speed is equal to distance upon time. The equation formed would be 20 into 5 by 18 because हमें आंसर पूछा गया है मीटर्स में, तो जो हमारी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में we have changed it into meter per second. For the distance 700 was the length of the train and x हमने assume किया है ब्रिज की लेंथ को. टाइम हमें 3 मिनट्स दिया गया था जिसको हमने 180 सेकेंड्स लिख लिया है. सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल इजीली गेट योर आंसर एज 300 meters. तो द लेंथ ऑफ द ब्रिज व्हिच वाज आस्क्ड इज 300 meters. कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट. नाउ इफ टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद a speed of 100 km per hour and 150 km per hour, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? So the relative speed in this case when both the cars are moving in the same direction will be subtractive, that is 150 minus 100 will be 50 kilometers per hour. ये इनकी relative speed होगी. In the next case, if two cars are coming from the opposite directions with the same speed of 100 kilometers hour and 150 kilometers per hour, इस केस में इनकी speed additive होगी, that is 150 plus 100 that is 250 kilometers per hour. अब हम इस कंसेप्ट को क्वेश्चन से समझ लेते हैं. Two cars start from points A and B at the same time. One runs at 50 kilometers per hour, other runs at 70 kilometers per hour and crosses each other after 1 hour 40 minutes. दो गाड़ियां अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होती हैं कुछ डिफरेंट स्पीड्स पे और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 1 घंटा 40 मिनट के बाद. तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें पूछा है. हमारे पास दो कार्स हैं, हम सेम फॉर्मूला जो हमने बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम वो यूज करेंगे. स्पीड हम इनकी एडिटिव लेंगे क्योंकि हमने अभी जस्ट कंसेप्ट में पढ़ा अगर कार्स अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है. यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं. टाइम को हम चेंज करेंगे आवर्स में बिकॉज 1 hour 40 मिनट्स दिया हुआ था. हम 40 मिनट्स को अगर आवर में चेंज करेंगे तो वी जस्ट हैव टू डिवाइड बाय 60 एंड बहुत इजीली आपका डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 200 किलोमीटर्स.
बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two cars start from one point to another at the same time. A runs at 50 kilometers per hour, B runs at 70 kilometers per hour. If B reaches the destination 2 hours before A, what is the distance between the 2 points? यहाँ पर भी distance हमें पूछा है, लेकिन अब cars एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। एक गाड़ी की स्पीड दूसरी कार से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो उससे पहले पहुंचेगी। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 कार्स जा रही थी, अब यहाँ पे यू नीड टू अप्लाई द सिंपल ट्रिक, स्पीड ऑफ A इंटू स्पीड ऑफ B इंटू डिले अपॉन द रिलेटिव स्पीड ऑफ A एंड B। अब इस क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते थे, जहाँ पे आप x एज्यूम करेंगे एंड यू विल गो ऑन विद द कैलकुलेशंस। इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 10 सेकेंड्स कर पाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे? सब्ट्रैक्ट होगी। 70 minus 15, that will give you 20. So 50 into 70 into 2 upon 20, and this will easily give you 350 kilometers as your answer. The next question, 2 cars are at a distance of 100 kilometers from each other at 8 a.m. After 1 hour, car A starts moving towards B at 25 kilometers per hour, while at 10 a.m. B starts moving away from A at 20 kilometers per hour. वो किस समय मिलेंगे? अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी होगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको करते हैं और फिर भी गलत कर जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक इजी कंसेप्ट, एक सिंपली सॉल्यूशन जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो हमारी 2 कार्स हैं, 8 AM पे उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है। आफ्टर 1 आवर जो हमारी फर्स्ट कार है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, और 10 बजे जब वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी तो हमारी आगे वाली कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू होगी। अब अप्लाइंग द सेम बेसिक फॉर्मूला दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप बताइए कि डिस्टेंस हम क्या लेंगे? जो इसमें मेजर गलती बच्चे करते हैं वो डिस्टेंस में करते हैं। अब 100 किलोमीटर्स वॉज द डिस्टेंस एट 8 AM, बट हम 10 AM के रिस्पेक्ट में बात करेंगे बिकॉज 10 AM से हमारी सेकंड कार चलनी स्टार्ट हुई है। 10 AM पे द फर्स्ट कार हैज ऑलरेडी ट्रैवल 25 किलोमीटर्स, वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया 9 बजे। तो जब 10 बज रहे थे उसने ऑलरेडी 25 किलोमीटर कवर कर लिया। सो नाउ द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 75 किलोमीटर्स एंड द स्पीड दैट इज द रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, सो 25 minus 20 दैट विल गिव यू 5। आपने सिंपली इसको कैलकुलेट किया एंड यू विल गेट द आंसर एज 15 आवर। कितना सिंपल, कितना ही बेसिक क्वेश्चन था जिसको हम शायद x एज्यूम करेंगे, कन्वेंशनल मेथड, हम बहुत सारा इसमें अपना ब्रेन यूज करेंगे और फिर भी गलत कर देते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम जब वो कितने बजे मिले। सो आफ्टर 15 आवर्स व्हेन वी ऐड दिस टू 10 AM वी विल गेट 1 AM एज द आंसर। तो जो भी आपको क्वेश्चन ने पूछा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस नीड आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। If you like this video by Hit Bullseye, do like and comment and do subscribe our Hit Bullseye channel.